students, welcome to my channel Core Grammar and English Education. So in this video I am going to explain you the chapter tense in detail. Okay, so see, tense is a very vital chapter, very important chapter for all the classes, and classes from 5 to 12 can follow this video. Okay, because tense is same, just the standard of sentences are different depending on the classes. So all of you can follow this video. I am going to explain you the basics and some important points which you have to remember while doing tense. Okay, so let's begin. So see, while doing tense we have to remember that there are three types of tenses. Okay, major divisions, if you wish, you can say there are three main divisions. Okay, first is your present tense. Okay, second जो तुम्हारा है that is your past, and third is your future. So ये main तुम्हारा तीन divisions हैं, the main three parts of your tense. Okay, first is your present, second is your past and third is your future. अब देखो ये हर एक tense का चार सब divisions है. Okay, first let us see the division, then we will do with the examples. First is your simple present. I am only writing simple. Okay, you try to follow. Simple present, simple past and simple future. Then what we have? Then we have present continuous, past continuous and future continuous. Then you have present perfect, past perfect and future perfect. Okay, one more division you have, that is your perfect continuous, which I will show a bit later. So first let us see some examples with these types. Okay, so see, let me make one division. I will take one simple sentence and convert it into different types so that you can follow. See, first मैं sentence ले रहा हूँ, I play cricket. This is simple tense, simple present tense. Okay, I play cricket. When you will change into past, what will happen? I played cricket. Okay, then simple future, I will play cricket. Okay, ये हो गया सिंपल. अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब सेंटेंसेस आ जाता है, जब पैराग्राफ आ जाता है, मेनी ऑफ यू मेक मिस्टेक्स ओके व्हाइल सॉल्विंग योर एक्सरसाइजेस, तो थोड़ा सा इसको तुम लॉजिकली सोचोगे. आई प्ले क्रिकेट मतलब कि डेली तुम्हारा हैबिट है. ओके, प्रेजेंटली ऑल्सो यू आर डूइंग. पास्ट में सिंपल पास्ट मीन्स यू यूज्ड टू डू इट अर्लियर. आई प्लेड क्रिकेट. विल प्ले क्रिकेट मीन्स इट्स अ फ्यूचर, कि तुम फ्यूचर में क्रिकेट खेलोगे. इसका कंटिन्यूअस क्या है? देखो, I am playing cricket. ठीक है, I am playing cricket में क्या होगा कि मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ. Presently I am playing. Okay, presently you are continuing your task. Then see, I was playing cricket. इसका मतलब क्या है कि तुम पहले क्रिकेट खेलते थे, माने खेलना कंटिन्यू कर रहे थे पहले. I was playing cricket yesterday मतलब yesterday तुम खेल रहे थे. और सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट मतलब फ्यूचर में तुम क्रिकेट खेलते रहोगे. ओके, तो ऐसे हम लोगों का टेंस का डिफरेंस होता है. सो इफ यू फॉलो दिस चार्ट यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस दैट यू विल गेट इन योर एग्जाम्स. ओके, और एनी practice papers that you do usually at your home. Okay, then see perfect. परफेक्ट में प्रेजेंट में दो चीज यूज होता है,
ईदर हैव नहीं तो हैज, ये डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट यूज होता है। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में। सो द वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग बट वॉच टिल द एंड सो दैट यू कैन फॉलो वॉट एवर आई एम सेइंग। तो देखो परफेक्ट में क्या होगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। क्योंकि यहाँ आई है वी हैव यूज्ड हैव, अगर ये ही होता तो हम लोग हैज यूज करते। उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट देखते हैं। चलो पास्ट परफेक्ट में होगा आई हैड प्लेड क्रिकेट। ओके, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड ही यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, जस्ट यू हैव टू यूज विल एज इट इज इन फ्यूचर टेंस, और इसमें भी हैव छोड़ के और दूसरा कुछ नहीं होता है, हैव ही होता है, हैज या हैड नहीं आता है, विल हैव ही होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज दोनों में से एक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ओके, ये तो हो गया हम लोगों का परफेक्ट टेंस तक। और एक जो टेंस है दैट इज योर perfect continuous. Okay, so let's see perfect continuous tense. तो देखो जब हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूजुअली हम लोग क्लास 5 में नहीं करते हैं। ओके, वो हम लोग 6-7 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। बट इफ यू विश तुम लोग इससे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रख दो, दोज आर इन क्लास 5। ओके, तो परफेक्ट टेंसेस में कैसा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, ये 4th सब डिविजन है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग CONT। ओके, इट मीन्स कंटिन्यूअस। I won't be able to write fully because there is not much space. Okay, perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. So see, इसमें कैसा तुम्हारा डिफरेंस है, मैं वही क्रिकेट का ही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। I have been playing cricket। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्रिकेट खेलते रह रहा था। ठीक है, पास्ट में होगा आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके, और एक फ्यूचर परफेक्ट में होगा, देखो ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब देखो होता क्या है, ये चार्ट समझने के टाइम में काफी इजी लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू मींस राइट द आंसर्स, जब तुम लोगों को पैराग्राफ दे दिया जाता है तो उसमें करने के टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, बट ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा और तुम अगर इसको अपना लैंग्वेज में समझ के रखोगे कि टाइम पीरियड को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, या एक्शन जो है ये एक्शन को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, कैसे डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, देन यू वोंट हैव मच प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया हम लोग का टेंस का डिविजन्स। तो अब हम लोग ये जो वर्ब्स है, जब भी हम लोग टेंस के चैप्टर्स करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हम लोग को वर्ब्स देखना पड़ता है। तो वर्ब्स ना 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्शन वर्ब्स और एक होता है नॉन एक्शन वर्ब्स। ओके, ये एक्शन वर्ब्स क्या होता है, जैसा देखो प्ले, डांस, सिंग, जिसमें तुम्हारा कुछ मूवमेंट होगा। ठीक है, जिसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ मूवमेंट रिलेटेड जो भी वर्ब्स है वो सब होता है एक्शन वर्ब्स। ठीक है, और नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होता है, नॉन एक्शन वर्ब्स में तुम्हारा कोई भी मूवमेंट नहीं रहता है, जैसा फील, अंडरस्टैंड। ओके, so in these verbs you will have no movement, physical movement इसमें नहीं होता है। तो ये हो गया एक्शन वर्ब्स और नॉन एक्शन वर्ब्स। ठीक है, तो ये बात मैंने इसलिए बोला because in some of the books you have these topics and sometimes you feel difficulty in understanding these things. Okay, so इसलिए मैंने
टेंस के साथ ये एक्शन वर्ब्स और नॉन एक्शन वर्ब्स भी बता दिया, क्योंकि टेंस जो है वो एक्चुअली में वर्ब का ही एक पार्ट है। ओके, टेंस जो है वो एक्चुअली वर्ब जो है, वर्ब का ही अलग अलग टाइम पीरियड को बताता है। ठीक है, एक प्रेजेंट टाइम पीरियड को बताता है, एक पास्ट को बताता है और एक फ्यूचर को बताता है। और इसमें भी जैसे हम लोगों ने सब कैटेगरीज देखे वैसे इसमें डिवाइडेड रहते हैं। ओके, so after listening to this video, if you go through your book, it will be easier to understand what are the different types of tenses and what are the two types of verbs that we usually have while solving or while studying the chapter of tense. Okay, because if you are studying about tense, then you have to always remember about the verbs also and its types. Okay, so that's all in this video. I hope you have understood it.